بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفن اور دفن کے مسائل۔ ناظرین حضرات، یہ ویڈیو موت میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، نماز جنازہ، میت کو لے کر چلنا، اس کو دفن کرنا اور تعزیت کے تعلق سے ہے۔ میت کو دفن کرنا۔ موت وہ سچائی ہے جس کے بارے میں کسی بھی دھرم یا مذہب میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی دنیا و جہان میں جو کچھ ہے سب کچھ ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں یاد کرنے سے مراد دنیا سے غفلت اختیار کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی پریشانی آن پڑی تو لوگ موت کی دعا کرنے۔ ہاں، اگر اس پر کہیں کہ اے مولا، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو موت عطا فرما، تو اسے کہنا جائز ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جیسے اپنے رب پر گمان رکھتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے، لہٰذا اپنے رب پر اچھا گمان رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مراد کو پہنچا جس کا خاتمہ خیر سے دعا، یعنی زندگی بھر کے سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں فقہا کے اقوال کا و مسائل کی طرف۔ فقہا: جب موت کا وقت آ جائے اور علاماتیں پائی جائیں تو سنت ہے کہ اس کو داہنی کروٹ پر لٹا دیں کہ منہ قبلے کی جانب ہو جائے، اور چت لٹا کر پاؤں کو قبلے کی جانب کر دیں، مگر سر کو پیر کی بنسبت اونچا رکھیں کہ اس طرح کی منہ قبلے کی جانب ہو جائے، اور اگر دشواری ہو تو جس حالت پر چاہیں چھوڑ دیں۔ فقہا: یوں ہی جاگنے کی حالت میں اس کے پاس وہ آواز بلند کلمہ شریف پڑھیں کہ وہ سن کر پڑھے، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ حالت نزا میں انکار کر دے، یہ برا ہوگا، مگر حکم کفر پھر بھی نہیں لائے گا کہ ایسی حالت میں عقل محکوم ہو جاتی ہے۔ فقہا: پھر جب وہ کلمہ پڑھ لے تو تلقین روک دیں۔ ہاں، اگر کچھ اور بات کر لیں تو پھر تلقین کریں کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے جو نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ تلقین کرنے والا نیک اور پرہیزگار ہو۔ بہتر ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے اور خوشبو وغیرہ سے مکان مہکا دیں۔ حیض و نفاس والی عورتیں پاس رہ سکتی ہیں، لیکن حیض بند ہو چکے اور ابھی غسل نہیں کیا ہے یا جنوب ہے تو دور رہیں، اور کوشش کریں کہ مکان میں کتا یا جانور کی تصویر نہ ہو، کیونکہ ان کے رہنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے کہ فرشتے اس کی دعاؤں کو آمین کہیں۔ لہٰذا بری باتوں سے پرہیز کریں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی سے جبڑے کے نیچے سے سر پر لے کر جا کر گرا لگا دیں کہ منہ نہ کھلنے پائے، اور آنکھیں بند کر دیں، اور ہاتھ پاؤں نرمی کے ساتھ سیدھا کر دیں، اور پیٹ پر لوہا یا گیلی پٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہو۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت پر لٹا دیں کہ زمین کی نمی وہ پہنچے۔ اگر اس کے ذمے قرض ہو تو فوراً قرض ادا کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ اس کے قرض کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال سے قرض ادا کریں، ورنہ ورثہ اپنے مال سے ادا کریں۔ میت کے پاس تلاوت اور ذکر و اذکار بلا شبہ جائز ہے۔ غسل و کفن میں جلدی کریں کہ حدیث میں بہت تاکید آئی ہے، لہٰذا جلدی کریں۔ احباب و رشتہ داروں کو اطلاع کریں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی۔ یوں ہی میت کی خبر دینے کے لیے اعلان کرنا بھی جائز ہے، مگر اس کے لیے بڑے بڑے آداب و القاب نہ پکارے جائیں۔ عورت مر گئی اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چیر کر بچہ نکال لیا جائے۔ اگر عورت زندہ ہے اور بچہ مر گیا تو بچے کو کاٹ کر بھی نکال سکتے ہیں، اور عورت اور بچے دونوں زندہ ہیں تو کسی بھی تکلیف کیوں نہ ہو بچے کو کاٹ کر نہیں نکال سکتے۔ اگر جبراً اس نے
किसी का माल निगल लिया है और मर गया तो अगर माल छोड़ा है तो माल से तावान दें और नहीं तो पेट चीर कर माल निकाल लें और शहवन निगल लिया था तो ना चीरा जाए। हामिला औरत मर गई है तो किसी ने ख्वाब देखा कि बच्चा हुआ है तो सिर्फ ख्वाब की बिना पर कब्र खोदने की इजाज़त नहीं। मैयत को नहलाना। मसला गुस्ल देने के लिए ज़रूरत की चीज़ें ये हैं कि नंबर 1 पाक पानी बेहतर है, हल्का गर्म हो। नंबर 2 पाक मिट्टी या पाक साबुन। नंबर 3 बेर के पत्ते बेहतर हैं, इसको पानी में धोकर खूब खौला लें और हस्बे ज़रूरत गुस्ल देने के पानी में मिलाते रहें। नंबर 4 कपड़े के कुछ टुकड़े या रुई। नंबर 5 हाथों में लपेटने के लिए कपड़ा या दस्ताने। नंबर 6 3 मोटी चादरें पर्दा करने के लिए और औरतें हों, वरना मर्द के लिए पर्दे की हाजत नहीं। 7 कपूर, इसको एक बर्तन में घोलकर पानी में खूब अच्छी तरह मिला लें और ये चीज़ें मुस्ताहब हैं और अगर मिले तो बेहतर है, वरना सिर्फ पानी से भी गुस्ल हो जाएगा। मसला मैयत को नहलाना फर्ज किफ़ाया है, यानी बाज लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सब बरी हो गए। मसला अगर मर्द है और तो मर्द और औरत है तो औरत गुस्ल दे, अगर छोटा लड़का है तो औरत नहला सकती है। यूं ही लड़की छोटी है तो मर्द गुस्ल दे सकता है, छोटी से मुराद हद शहबत को ना पहुंची हो। यूं ही बीबी अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है, मगर तब यही जबकि उसके निकाह में रही हो, वरना तलाक हो दी हो तो माज अल्लाह मर्तद हो गई है। इस सूरत में अजनबी हो चुकी है, अब नहीं नहला सकती। तलाक रजाई दी और इद्दत के अंदर शोहर का इंतकाल हुआ तो भी गुस्ल दे सकती है, लेकिन वाइन तलाक दी है तो नहीं नहला सकती। मसला औरत मर गई तो उसका शोहर उसे गुस्ल नहीं दे सकता, ना छू सकता, हाँ देख सकता है। और आवाम में जो ये मशहूर है कि ना तो देख सकता है ना कंधा दे सकता है, मजहब बे असल है। इस तरह अगर कपड़ों के ऊपर से उसके बदन को हाथ लगाता है तो भी मुमानियत नहीं। मसला औरत का इंतकाल हुआ और कोई औरत नहीं कि गुस्ल दे सके तो ताय्युम कराया जाए। जब अगर महरम है तो हाथ से और अगर गैर महरम है तो या शोहर है तो हाथ पर कपड़ा लपेटकर ताय्युम कराए। गैर महरम हाथ की तरफ नजर ना करे और शोहर को इसकी मनाही नहीं और जवान व बुढ़िया की कोई कैद नहीं है। यूं ही मर्द का इंतकाल हुआ और औरत नहीं कि गुस्ल दे सके तो औरत उसे ताय्युम कराए और महरम हो तो ऐसी ही और गैर महरम तो हाथ पर कपड़ा लपेटकर। मसला जिस्म का आधा या इससे ज्यादा टुकड़ा मिला तो गुस्लो कफन नमाज सब पढ़ी जाएगी। बाद को आधा भी मिला तो उसको ही ऐसे ही कपड़े में लपेटकर दफन कर दें। मसला मुर्दा मिला अगर शनाख्त होती है तो मसला बाज काता में से है, मुसलमानों के मोहल्ले में या करीब मिला, ऐसी हालत जाहिर हो कि मुसलमान है तो गुस्लो कफन और नमाज सब की जाए और पहचाना ना होती हो तो ऐसे ही कपड़े को लपेटकर दफन कर दें। फिर बाद में पता चले कि मुसलमान था तो 3 दिन के अंदर कब्र पर नमाज पढ़ें, इसके बाद इजाज़त नहीं। मसला मैयत का बदन ऐसा हो गया कि हाथ नहीं लगा सकते तो बिना हाथ लगाए सिर्फ पानी बहा दिया जाए। मसला दोनों हाथों को करबटों में रखें, सीने पर ना रखें और ना ही नाप के नीचे बांधें। मसला बाज़ जगह दस्तूर है कि गुस्ल के लिए नए घड़े या बदने लाए जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, घर के बर्तन से गुस्ल कराया जा सकता है। फिर बाज़ जगह इस घड़े या बदने को तोड़ डालते हैं, ये नाजायज़ हराम है कि पैसे की खराबी है। और ये सोचना कि मैयत को गुस्ल देने के बाद वो नाजिस हो गए तो ये हिकायत है कि अव्वल तो जिस्म से जुदा हुआ पानी मुस्तमिल के हुक्म में है और अगर नाजिस हुआ भी हो तो भी पानी से धोने पर नजासत पाक हो जाती है। बाज़ जगह घर का पानी फेंक देते हैं, ये भी हराम है। और उन बर्तनों को घर में रखने की को नहुसत समझना फिर भी निराज हालत है। तरीका किसी तख्त को पानी से धोकर उस पर मैयत को लिटा दें और तख्त के सरहाने ईंट लगाकर थोड़ा सा ऊंचा कर दें और मर्द है तो नाप से लेकर घुटनों तक, अगर औरत है तो पूरा जिस्म ढककर गुस्ल दिया जाए। तरीका यह है कि गुस्ल देने वाला सबसे पहले हाथों पर कपड़ा लपेटकर इस्तिंजा कराए, फिर नमाज सब वुजू कराए, यानी पहले मुंह फिर कोनियों तक हाथ धोए और फिर सर का मशा कराए, फिर पांव धोए। किसी कपड़े या रुई की फरेरी भिगोकर दांतों और मसूड़ों और होठों और नाखूनों पर फेर दे। फिर अगर सर और दाढ़ी के बाल हों तो गुल खेरू से खोए, ये ना हो तो कोई पाक साबुन से धोए।
जाए, फिर बाई करवट पर लिटाकर सर के पांव तक बेरी का पानी बहाएं कि तख्त तक पहुंच जाए, फिर दाई करवट से लिटाकर ऐसा ही करें, फिर आखिर में सर से पांव तक कपूर का पानी बहाएं और फिर पूरे बदन को नरमी के साथ किसी कपड़े से सुखा लें। मैयत को कफन पहनाना। मसला, मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है और इसके 3 दर्जे हैं। नंबर 1 जरूरत, नंबर 2 किफायत, नंबर 3 सुन्नत, मर्द के लिए सुन्नत, नंबर 3 कपड़े हैं लिफाफा, आजार और कमीज, और औरत के लिए 3, यही 2 में ओढ़नी और सीना बंद, और अक्सर यही इस्तेमाल किया जाता है, और जहां इसके अलावा इस्तेमाल हो तो कम से कम इतना तो सारा बदन ढक जाए। मसला किफाया यानी चादर, उसकी मिकदार ये है कि मैयत के कद से इतना ज़्यादा हो कि दोनों तरफ गिरा लगा सकें, और आजार यानी तहबंद की मिकदार चोटी से कदम तक, और कमीज जिसको कफनी कहते हैं उसकी मिकदार गर्दन से घुटनों के नीचे तक और आगे और पीछे दोनों तरफ से बराबर हो। और जाहिलों में जो ये रिवाज है कि पीछे से कम रखते हैं, ये गलती है। मर्द व औरत की कफनी में फर्क है। मर्द की कफनी मुड्ढों पर चीरो और औरत की सीने की तरफ ओढ़नी तकरीबन 1.5 गज और सीना बंद पिस्तान से नाप तक बल्कि राम तक ज्यादा बेहतर है। मसला कफन का कपड़ा ऐसा होना चाहिए जैसे कि मर्द जुमा व ईद में औरत को अपने मायके जाते हुए पहनती है, यानी कीमती और सफेद हो, ये बेहतर है। तरीका, मैयत के बदन को सुखाने के बाद कफन को खुशबू वगैरह की धुनी ले लें, फिर कफन यूं ही बिछाएं कि बड़ी चादर, फिर तहबंद, फिर कफनी को खोल लें, फिर मैयत को लिटाएं, फिर कफनी पहनाएं और दाढ़ी और तमाम बदन पर खुशबू कपूर वगैरह मलें, खासकर पेशानी, नाक, हाथ, घुटना, कदम वगैरह, फिर तहबंद लपेटें कि पहली बाएं जानिब, फिर से दाएं जानिब से, फिर इसी तरह लिफाफा करें, पहले बाएं फिर दाएं पल्ला ऊपर रहे। औरत को कफनी पहनाने के बाद उसके बाल के 2 हिस्से करके कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी निस्फ पुश्त के नीचे से बिछाकर सर पर लगाकर मुंह पर मिसल नकाब के डाल दें। सीने पर रहे फिर भी उसके ऊपर सीना बंद पिस्तान से राम तक बांधें, फिर लिफाफा, उसके बाद सिर और पैर की तरफ से फूल गिरा लगा दें। इसे कब्र में लिटाकर खोलना होगा। हिंदुस्तान में कफन मसनून के साथ एक चादर जो सबसे ऊपर डाली जाती है, एक जानमाज भी होती है जिस पर इमाम नमाज पढ़ता है, इसे सदका कर दिया जाता है। जनाजा लेकर चलना। मसला, जनाजे को कंधा देना इबादत है और इसमें कोताही न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधा देना साबित है। बेहतर है कि 4 लोग जनाजा उठाएं और जगह तंग है तो कोई और मजबूरी है तो 2 लोग भी उठा सकते हैं। बेहतर है कि पहले दाएं सिरहाने, फिर दाएं पैर की तरफ, फिर बाएं सिरहाने और फिर बाएं पैर की तरफ से कंधा दें और 10 कदम चलें। फरमाया गया है कि जो मैयत के साथ 40 कदम चलेगा उसके 40 कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। चौपाए या गाड़ी पर जनाजा ले जाना मकरूह है, लेकिन काफी दूर जाना है तो हर्ज नहीं। जनाजा थोड़ा तेजी से लेकर चलें, मगर इतना नहीं कि मैयत को तकलीफ हो और चलने वाले पीछे चलें, ना कि दाएं बाएं और आगे चलना हो तो काफी आगे हो तो ताकि उसमें शुमार ना हो। सवारी के साथ चलने का भी यही हुक्म है कि इतना आगे हो कि जनाजे में शुमार ना हो। औरतें जनाजे के साथ न जाएं, खामोशी के साथ चलें। मगर अब लिहाज जमाना उलमा ने जिक्र विल जहर की इजाजत दी है कि फालतू बातें करने से जिक्रुल्लाह करना बेहतर है। जनाजा जब तक कब्रिस्तान में ना रखना जाए बैठा नहीं, और जब रख दिया जाए तो बिला जरूरत खड़े ना हो। यूं ही किसी का जनाजा आता देखें तो खड़े होने की हाजत नहीं है। हाँ, साथ में जाना हो तो और बात है। जब मैयत रखें किबले दाएं करवट हो, जनाजे के साथ जाना, नफल नमाज पढ़ें से बेहतर है कि नमाज जनाजा पढ़ें वगैरह वापस न लौटें। नमाज जनाजा। मसला, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। एक ने पढ़ ली तो सब बरी हो गए और एक ने भी नहीं पढ़ी तो जिसको खबर पहुंची सब गुनाहगार हो गए। मसला, इसकी फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है और इसके लिए जमात शर्त नहीं, बल्कि तन्हा भी पढ़ ली तो हो गई। मसला, नमाज पढ़ने के लिए वही शरीयत है जो दीगर नमाजों के हैं।
जैसे कादिर होना, आकिल बालिग मुसलमान होना, नजासत से कपड़े और जगह का पाक होना, सतरे औरत, किबला की तरफ मुंह होना और नियत, इसमें वक्त शर्त नहीं और तकबीर तहरीम फर्ज नहीं बल्कि रुकन है। मसला, बाज लोग जूता पहने हुए और बाज जूते पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अगर जूता पहने हैं तो जूता और जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है। जूता उतार कर उस पर खड़े हो गया तो सिर्फ जूते का पाक होना काफी है। मसला, जनाजा तैयार है कि वुजू करेगा तो नमाज नहीं मिलेगी तो ताय्युम करके नमाज पढ़े। मसला, बच्चा जिंदा हुआ और मर गया तो नमाज पढ़ी जाएगी और मुर्दा पैदा हुआ तो नमाज नहीं। मसला, मुसलमान को छोटा बच्चा मिला और बाद को मर गया तो नमाज पढ़ी जाएगी। यूं ही छोटे बच्चे के माँ बाप से कोई एक मुसलमान हो तो बच्चे की नमाज पढ़ी जाएगी और दोनों काफिर हैं तो नहीं। मसला, चंद मुसलमानों को छोड़कर हर किसी की नमाज पढ़ी जाएगी अगरचे कैसा भी गुनाहगार हो, और जिनकी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी वो ये हैं। नंबर 1, डाकू की डाका डालते वक्त मारा गया तो न गुस्ल है न नमाज, और न पकड़ा गया फिर सजा के तौर पर मारा गया, या बगैर डाका डाले हुए घर में मर गया तो गुस्ल और नमाज दोनों है। नंबर 2, बागी जो इमाम बरहक के खिलाफ लड़े उसकी भी नमाज नहीं। नंबर 3, जिसने कई लोगों का गला घोट कर मार डाला उसकी नमाज नहीं। नंबर 4, जिसने अपने माँ बाप को मार डाला जिसकी भी नमाज नहीं, उसकी भी नमाज नहीं। जो किसी का माल छीनता हो और मार जाए उसकी भी नमाज नहीं। मसला, खुदकुशी करना हराम है मगर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मसला, बगैर गुस्ल दिए नमाज पढ़ी तो अगर कब्र में नहीं उतारा है तो फिर से गुस्ल देकर नमाज पढ़ें, और मिट्टी दे चुके हैं तो लाश ना निकले बल्कि अब कब्र पर नमाज पढ़ें। मसला, मैयत का सामने होना भी जरूरी है यानी गायब की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। मसला, अगर कई मैयत एक साथ आ गई तो सबकी नमाज साथ में पढ़ी जा सकती है। पहले मर्दों का जनाजा रखा जाए, फिर मर्द बच्चों का, फिर उसके बाद औरतों का। मसला, नमाज जनाजा में 2 रुकन हैं। पहला 4 बार तकबीर बोलना और दूसरा कयाम करना और तीसरा सुन्नत मुअक्किदा है। पहले अल्लाह की हम्दो सना, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना और तीसरा मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। तरीका, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहता हुआ कानों तक हाथ उठाए और नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। जो दीगर नमाजों में पढ़ते हैं वही पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी तकबीर कहें और दुरूद पढ़ें। दुरूद इब्राहिम यानी नमाज वाला दुरूद पढ़ें या जो भी याद हो वो पढ़ें। फिर तीसरी तकबीर कहें और मैयत के लिए दुआ करें, या फिर ये दुआ पढ़ सकते हैं। ये दुआ बालिग मर्द व औरत दोनों के लिए पढ़ी जाती है और नाबालिग लड़के के लिए दूसरी दुआ है और नाबालिग लड़की के लिए अलग दुआ, मगर यही दुआ सभी के लिए पढ़ी जा सकती है, इसमें हर्ज नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं हैं मगर जो भी पढ़े उसे उम्रे आखिरत का जिक्र हो। और चौथी तकबीर के बाद हाथ खोलकर कुछ पढ़ें, सलाम फेर दें और नियत मैयत फरिश्तों और हाजिरीन नमाज की करें। मसला, पहली तकबीर के वक्त ही हाथ उठाना है, बाकियों में नहीं, और बाज लोग हर तकबीर में आसमान की तरफ मुंह उठाते हैं, ये भी जायज़ नहीं, इसकी सख्त मुमानियत आई है। मसला, नमाज जनाजा में पिछली सफ़ को तमाम सफ़ों से ज़्यादा फजीलत है। हदीस पाक में आया है कि जिसकी नमाज में 3 सफ़ें होंगी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। लिहाजा अगर किसी की मैयत में 6 ही लोग हों तो पहली सफ़ में 3 लोग और दूसरी सफ़ में 2 लोग और तीसरी में एक शख्स खड़ा होकर नमाज पढ़े कि 3 सफ़ हो जाएं। मसला, बगैर वली के इजाज़त के नमाज ना पढ़ाई जाए। हाँ, कोई वली ना हो तो हर्ज नहीं, यूं ही बिना इजाज़त पढ़ाई या वली मौजूद ना हो तो बाद को आकर अपनी नमाज पढ़ सकता है। और अगर मैयत दफन हो चुकी है तो कब्र पर पढ़े, मगर 3 दिन के अंदर, उसके बाद इजाज़त नहीं। मसला,
کنویں میں گر کر مر گیا ہے کہ لاش نہیں نکالی جا سکتی ہے، یا مکان کے نیچے دب گیا تو وہی نماز پڑھ لیں، لیکن دریا میں ڈوب گیا تو نماز نہیں کی مصلی کا آگے ہونا معلوم نہیں۔ مسئلہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، خواہ کسی کی ہو۔ مسئلہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ، خواہ نماز پڑھی جائے یا نہیں، مگر اس کا نام رکھ دیں کہ قیامت کے دن اس کا حشر تو ہوگا۔ میت کو دفن کرنا۔ مسئلہ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ زمین پر رکھ کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دیں۔ مسئلہ جس جگہ انتقال ہوا ہے اس جگہ دفن کرنا بھی مناسب نہیں، کہ یہ خصائص صرف انبیاء اولیاء کو حاصل ہے۔ مسئلہ قبر دو قسم کی ہوتی ہیں، پہلی لحد، یہ سنت ہے، اور دوسری صندوق، جو کہ ہندوستان میں رائج ہے۔ مسئلہ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا فضول ہے، جائز نہیں، یوں ہی لکڑی کے صندوق میں دفن کرنا بھی مناسب ہے۔ مسئلہ قبر میں اتارنے والے 2-3 لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نیک و صالح اور جانکار ہوں، اور عورت کے لیے بہتر ہے کہ محرم ہو، ورنہ اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ قبر میں اتارتے وقت قبلہ کی جانب سے میت کو لائیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ و اعلی ملت رسولہ۔ مسئلہ میت کو داہنی کروٹ پر ہلکا سا کر دیں اور اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیں اور اس کے کفن کی گرہ کھول دیں۔ مسئلہ اگر لحد ہے تو کچی اینٹوں سے اس کو بند کر دیں، پکی اینٹوں سے نہ لگائیں کہ یہ آگ سے پکائی جاتی ہیں، اور قبر میں آگ کا داخل کرنا ہرگز بہتر نہیں ہے، اور اگر صندوق ہے تو لکڑی کے تختوں کو بند کر کے مٹی دیں۔ مسئلہ مٹی سرہانے کی طرف سے دیں اور 3 بار ڈالیں، پہلی بار میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مسئلہ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو دیں، اختیار ہے۔ مسئلہ پانی کے جہاز میں انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل، کفن و نماز پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ مسئلہ علماء و شہداء کی قبروں کو پکی کرنے میں حرج نہیں، اور نشانی تو عام مسلمانوں کی قبروں میں بھی لگانا جائز ہے اور بہتر ہے۔ صالحین کے آس پاس دفن کریں کہ ان کی برکت سے اس پر رحمت ہوگی۔ مسئلہ دفن کے بعد مستحب ہے کہ سہرانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے مفلحون تک پنچایت کی جانب آمنور رسول کے ختم تک پڑھی جائے۔ مسئلہ دفن کے بعد اتنی دیر وہاں ٹھہریں کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے ہو، کہ گھر میں میت کے لیے نیا اور نئی جگہ جانے میں بندے ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر میں دل لگ جاتا ہے، لہٰذا ٹھہریں اور تلقین کرتے رہیں۔ مسئلہ بلا ضرورت ایک قبر میں 2 مردوں کا رکھنا جائز نہیں، ضرورت ہو تو مسئلہ کم ہے یا کچھ اور تو دونوں کے درمیان مٹی کی دیوار اٹھا کر قبر میں دفن کر دیں۔ مسئلہ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، ٹیک لگانا حرام ہے، یوں ہی اگر کسی عزیز کے قبر پر تک جانا چاہتے ہو اور بیچ میں قبر موجود ہے تو اجازت نہیں کہ وہیں فاتحہ پڑھیں۔ مسئلہ قبرستان میں جو نیا راستہ بنا ہے اس پر چلنا ناجائز و حرام ہے، بلا شبہ قبروں پر بنا ہوگا پرانے راستے میں قادمی، ان پر چلنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ قبرستان جو جگہ ہے جہاں جا کر انسان اپنی آخرت یاد آتی ہے، لہٰذا اس کا لحاظ مفہوم اور رکھیں، سوائے ذکر و اذکار و درود تلاوت کے فضول باتوں میں نہ پڑھیں، بلکہ ضرورت نہ ہو تو اپنے موبائل وغیرہ بھی سوئچ آف کر دیں۔ تعزیت کرنا۔ مسئلہ تعزیت دفن سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے وغیرہ، مگر بہتر ہے دفن کے بعد، مگر 3 دن کے اندر اس کے بعد مکروہ ہے۔ مسئلہ میت کے پڑوسی یا رشتہ دار کھانا لا کر میت کے گھر والوں کو کھلائیں، یہ جائز ہے، بہتر ہے، مگر اتنا ہی ہے کہ جتنا گھر والوں کو کافی ہو، وہ صرف میت والے دن، دوسرے دن نہیں۔ مسئلہ تیجا 40واں کرنا جائز بلکہ بہتر ہے، ایصال ثواب کا ہی ایک طریقہ ہے، مگر اس کا تخاخر طور کر یعنی دعوت کی شکل دے دینا جائز نہیں ہے۔ یہ کھانا بھی غریبوں و مسکینوں کے لیے ہے، اس کو غنی کھائے، لیکن غنی نہ کھا لیا تو کوئی ناجائز و حرام نہیں، ہاں پرہیز ضروری ہے۔ مسئلہ شوق 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، عورت اپنے شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن شوق کر سکتی ہے، مگر اس دوران گریبان
پھاڑنا یا چیخ چیخ کر رونا، سینہ کوبی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ آواز نکالنا بلکہ آنسو بہیں تو ایسے رونے میں حرج نہیں، بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکا فرمایا۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 129/171۔